ہے میرے رب نے بے شمار فرشتوں کو پیدا فرمایا ہے، لیکن تمام تر فرشتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ فرشتہ اگر کوئی بنایا ہے تو پیدا فرمانے کے بعد میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کسی کو بنایا ہے تو انسان کو بنایا ہے، اور تمام تر انسانوں کو پیدا فرمانے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی قبیلہ بنایا ہے، اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی جماعت بنائی ہے، اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی کمیٹی بنائی ہے، اگر سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی یونٹی بنائی ہے تو رسولوں کی جماعت کو بنایا ہے، اور تمام تر رسولوں کی جماعت کو پیدا فرمانے کے بعد میں اگر سب سے زیادہ پسندیدہ پروردگار عالم نے کسی کو بنایا ہے تو کسی اور کو نہیں بلکہ آمنہ کے لال کو بنایا ہے، عبداللہ کے لخت جگر کو بنایا ہے، رسولوں کے سلطان کو بنایا ہے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ اب یہاں سے ہمیں ایک بات پتہ چل جاتی ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک میسج مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک درس مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک سبق مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک ایسا میسج مل جاتا ہے، اب یہاں سے ہمیں ایک میسج مل جاتا ہے۔ پتہ چل گیا اسلام کے مقدس شہزادوں، میرے مصطفیٰ زمین سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ آسمان سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ چاند سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ سورج سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ ستاروں کے انجمن سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ پہاڑوں سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ جن و بشر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ بحر و بر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ خشک و تر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ شجر و حجر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ برگ و ثمر سے زیادہ بہتر ہے، میرے مصطفیٰ لوح و قلم سے زیادہ بہتر ہے، میرے ذرے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کہو گے مولانا تمہارا اتنا بڑا دعویٰ تمہارے مصطفیٰ کائنات کیتی کے ذرے ذرے سے زیادہ بہتر کیسے ہو گئے؟ تو آئیے میں آپ کے سوال کا جواب 30 سیکنڈ میں دے کر کے گزر جانا چاہتا ہوں۔ اے لوگوں، آپ پورب سے لے کے پچھم تک، اتر سے لے کے دکھن تک، مغرب سے لے کے مشرق تک، شمال سے لے کے جنوب تک چہار جانب گھوم لیجئے گا، اور تاریخ کے اور آگردانی کرنے والے لوگوں سے اس بات کا سوال کر کے جواب حاصل کر لیجئے گا، اور آپ اپنی مسجد کے خطیب و امام سے اس بات کا سوال کر کے جواب لے لیجئے گا، اور میرے سامنے کسی ایک ایسی ذات کو لا کر کے کھڑا کیجئے گا جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے عداوت نہیں کرتا ہو، جس سے سب پیار کرتے ہو، کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو، جسے سب لائک کرتے ہو، کوئی اس کو ان لائک نہیں کرتا ہو، جسے سب فالو کرتے ہو، کوئی اس کو اگنور نہیں کرتا ہو۔ اگر آپ امریکہ کے ٹرمپ کی بات کریں گے تو جہاں اس سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے وہاں اس سے دوریاں بنا کے رکھنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ آپ اپنے ہندوستان کے وزیر اعظم کی بات کریں گے تو جہاں اس سے محبت کرنے والے لوگ ملیں گے وہاں اس سے دشمنی کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ آپ اپنے اتر پردیش کے سی ایم کی بات کریں گے تو جہاں اس کو لائک کرنے والے لوگ ملیں گے وہاں اس کو ان لائک کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ آپ تمامی حضرات اپنے آپ کو لے لیجئے گا، اگر آپ سے محبت کرنے والے آپ کی بستی کے اندر ملیں گے تو آپ سے جلنے والے لوگ بھی مل جائیں گے، آپ سے حسد کرنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ میں حضرت کی بارگاہ میں پوچھتا ہوں، اگر آپ سے محبت کرنے والے اس بستی کے اندر ملیں گے تو آپ سے دوریاں بنا کے رہنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ میں اپنے آپ کو لے لیتا ہوں، اگر میرے فالوور اس زمین پہ ملیں گے تو مجھ سے دوریاں بنا کے رہنے والے لوگ بھی مل جائیں گے۔ لیکن آئیے سنتے چلے جائیے گا اسلام کے مقدس شہزادوں، پوری دنیا کا چکر لگانے کے بعد میں کسی ایک ایسی ذات کو میرے سامنے لا کر کے کھڑا کیجئے گا جس سے سب محبت کرتے ہو، کوئی اس سے دشمنی نہیں کرتا ہو، جس سے سب پیار کرتے ہو، کوئی اس سے بغض و کینہ نہیں رکھتا ہو، جسے سب لائک کرتے ہو، کوئی اس کو ان لائک نہیں کرتا ہو، جسے سب فالو کرتے ہو، کوئی اس کو اگنور نہیں کرتا ہو۔ ارے حد تو یہ ہے زمین جس سے پیار کرتی ہو، آسمان جس سے پیار کرتا ہو، چاند جس سے پیار کرتا ہو، سورج جس سے پیار کرتا ہو، ستاروں کے انجمن جس سے پیار کرتی ہو، برق و ثمر جس سے پیار کرتے ہو، جن و بشر جس سے پیار کرتے ہو، بحر و بر جس سے پیار کرتے ہو، شجر و حجر جس سے پیار کرتے ہو، خشک و تر جس سے پیار کرتے ہو، لوح و قلم جس سے پیار کرتے ہو، عرش کرسی جس سے پیار کرتے ہو، درس کائنات کیتی کا ذرہ ذرہ جس شخصیت سے پیار کرتا ہو، اگر آپ کو ایسی ذات کوئی ملے گی تو وہ ذات کوئی اور نہیں ہے، وہ ذات وہی ذات ہے جو 1450 برس پہلے مکے کی مقدس زمین پہ پیدا ہو رہی
जिंदाबाद नारे या अली नारे या अली। ये मेरे पैगंबर की शान है, ये मुस्तफा जाने रहमत की शान है। ओए, इससे थोड़ा नीचे हट के बैठ पैगंबर की शान बहुत बहुत उठ रहा हूँ बेर बेर। हाँ मेरे मुस्तफा की बहुत शान उठ रहा हूँ बेर जिसकी बेर समझ में आ यार। गई उसी को ये तो उता हटा दे कहा थोड़ा सा। जाता है। मेरे मुस्तफा थोड़ा की जात उठा मत जिसकी यार। समझ ली उसी को तो बिलाल हबशी कहा जाता है। उठिए मत, मेरे ऊपर ऊपर मत पैगंबर उठिए। को सही है मोहब्बत की नजर से देखा है ना? है, उसकी बैठो ना। शख्सियत को हजरत उबैस से करनी कहा ऊपर मत जाता उठिए। है। सही जहाँ इश्क वालों की बात चलेगी। ऊपर मत उठिए, ऊपर आज ऐसे की रात रखें। में हम लोग अपने घरों पर ऊपर मत उठिए, अच्छी ज्यादा ऊपर मत उठिए। उसी को तो पूरी दुनिया इश्क के इमाम हजरत उबैस करनी के नाम से याद करती है। कौन है तुम्हें पता नहीं है? मेरा एक कर्म के अंदर एक दीवाना रहता है जिसका नाम उबैस है, और वो मुझसे इतनी मोहब्बत किया करता है, और अल्लाह की बारगाह में उसका मकाम इतना बुलंद वाला है कि वो अगर मेरे रब की बारगाह में मेरी उम्मत के लिए दुआ करेगा तो परवरदिगार आलम उसकी दुआ के वसीले से मेरी उम्मत के गुनाहों को माफ कर देगा। ये मेरे उबैस की शान है। मेरे सहाबा जब मेरे आका हजरत ने मेरे आका अपने सहाबा की झुरमुट में सहाबा से इतना इरशाद फरमाते हैं तो सहाबा इकराम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अलैहि सलात व तस्लीम पर माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं, वो गुलाम आपका दीवाना रहता कहाँ पर है? तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं मेरे सहाबा वो कहीं और नहीं रहता है, वो कर्न के अंदर रहा करता है, उसका नाम उबैस है। उसके बदन पे फटा हुआ लिबास होता है, उसकी जुल्फें बिखरी हुई होती हैं, उसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें हैं, लेकिन उसकी जो माँ है वो नाबीना है, उसकी माँ को आंखों से नजर नहीं आता है, वो किसी को देख नहीं सकती है। उबैस अपनी माँ से इतना प्यार करता है, अपने माँ का इतना फर्मा बरदार है कि अपनी माँ को छोड़ के कहीं भी नहीं जाता है, इसलिए कि उसकी माँ को किसी चीज की जरूरत न पड़ जाए, और उसकी माँ को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ गई और उबैस वहां पर मौजूद नहीं रहा तो फिर परवरदिगार आलम ने मैदान महशर पे उबैस से अगर सवाल कर लिया तो कौन सा चेहरा होगा उबैस करनी के पास में जो परवरदिगार आलम के हुजूर को अपना चेहरा दिखाएगा? इस्लाम के मुकद्दस शहजादों तुम्हारे पास तो आज एक रात नहीं है जो अल्लाह उसके रसूल का जिक्र मोहब्बत के साथ में सुन लो। तुम्हारे पास में बैठना भी तुम्हारे ऊपर इतना गिरा गुजरता है अल्लाह वालों का जिक्र सुनते हुए। अगर तुमने अल्लाह वालों की बात और अल्लाह वालों की हिस्ट्री को पढ़ लिया तब तुम्हें पता चलेगा कौन है हजरत उबैस करनी। बच्चे इनके बदन में पत्थर मारा करते थे तो उबैस करनी बच्चों से कहते थे बच्चों तुम मेरे बदन में बड़े बड़े पत्थर न मारा करो, मेरे बदन में छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर मारा करते हो तो मेरे बदन से खून निकलता है, और जब इंसान के बदन से खून निकलता है तो बेवुजू हो जाया करता है। मैं हर वक्त बावजू रहता हूँ, तुम मेरे छोटे छोटे पत्थर मारा करो जिससे मेरे जिस्म से खून न निकला करे और मेरा वुजू न टूटा करे। ये उबैस करने की शान है। जब उबैस करने को भूख लगा करती थी, आज जब हमें भूख लगती है तो हम तो अपने पसंद का खाना अपने घर पे बनवा कर खाते हैं, और अगर घर पे भी खाना नहीं मिलता है तो हम 5 स्टार होटल में जाकर के अपने दिल और दिमाग का खाना खाया करते हैं। लेकिन आज ये कुर्बान जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों हजरत उबैस करनी की जात पर। उबैस करनी को जब भूख लगती थी तो उसी करनी के तालाब के पास में चले जाया करते थे जिसके अंदर कर्न के रहने वाले सब्जी बेचने वाले लोग उस तालाब में सब्जियों को धोया करते थे, और जो सब्जी धुलने से जो गले गले और सड़े हुए पत्ते उस तालाब के अंदर रह जाते थे, उन्हीं पत्तों को खा करके हजरत उबैस करनी अपने शिकम की भूख को मिटाया करते थे। तब कहीं जाके बुलंद मकाम हजरत उबैस करनी को मिला है। मेरे आका हजरत उबैस करनी रात के सन्नाटे में अपनी माँ के पैरों को दबा रहे हैं, अचानक रोने की आवाज उबैस करनी की बुलंद होती है। आंख से आंसू मोती बनकर के जब जमीन पे गिरे थे तो कुछ आंसू अपनी वालिदा के कदमों से टच होते हैं, माँ की आंख से माँ की पैरों से जब बेटे के आंसू टच हुए तो माँ ने कहा था मेरे लाल बता तो सही तू क्यों रो रहा है, मेरे लाल तेरे रोने की वजह क्या है, मेरे बेटे तेरे रोने की वजह क्या है। जब उबैस से इतना कहा था तो चीख निकल जाती है हजरत उबैस करनी की। अपनी माँ से कहते हैं मेरी माँ मैं मुस्तफा का कलमा पढ़ता हूँ, पैगंबर इस्लाम से सच्ची मोहब्बत किया करता हूँ, मुस्तफा के दौर में जी भी रहा हूँ, जिंदगी गुजार रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ मैंने अपने यार को आज तक देखा नहीं है। दिल चाहता है कि कोई एक ऐसा घंटा आ जाए जिंदगी में, कोई एक ऐसी घड़ी आ जाए, एक लम्हा एक साथ ऐसी आ जाए कि उबैस करनी के सामने उसके मुस्तफा का चेहरा जहाँ
तुम्हारा शरीफ हो, मेरा दिल हर वक्त यही चाहता है। तो माँ कहती है मेरे लाल अगर तुम पैगंबर का दीदार करना चाहते हो तो चले जाओ मदीना शरीफ के अंदर, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब माँ ने इतना कहा था बेटा मेरी एक शर्त है, तो वैसे करनी ने कहा था मेरी माँ बताओ तो सही तुम्हारी शर्त क्या है, तुम बताना क्या चाहती हो। तो माँ ने कहा था मेरे लाल तुम्हें मालूम है मुझे दिखता नहीं है, मेरी आंखें नाबीना हो चुकी है, मुझे खाने की जरूरत होती है, बेटा तुम खाना मुझे देते हो, अगर मुझे प्यास लगती है तो पीने के लिए पानी तुम लिया करते हो, और मेरी हालत इतनी खराब है कि मेरे दांतों में इतनी कुव्वत नहीं है, इतनी क्षमता इतनी इस्तेदाद नहीं है कि मैं अपने मुंह से निवाला चबा करके खुद खा लूं। जब मुझे जरूरत पड़ती है निवाला चबाने की तो तुम अपने मुंह से चबा करके निवाला निकाल करके मेरे मुंह में डाला करते हो। मेरे बेटे वैसे करनी मैं तुमसे इजाजत तो दे दूंगी जाने की, लेकिन तुम जाना सुबह का सूरज जब निकले तब अपने घर से निकल जाना, और मेरी शर्त ये है कि सूरज ढलने से पहले सूरज डूबने से पहले तुम्हें वापस आना पड़ेगा, तब मैं तुम्हें जाने की इजाजत दूंगी। हजरत वैसे करनी ने अपनी माँ का फरमान सुना था, और सुनने के बाद में वहीं पर गिरा लगा ली थी, अहदो पैमान लिया था अपनी माँ से। अब कुछ भी हो सकता था, लेकिन बेटा वैसे करनी अपनी माँ से किए हुए वादे को पामाल नहीं कर सकता था। हजरत वैसे करनी जब सुबह का सूरज निकलता है चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाती है, सूरज ने अपनी किरणों को दुनिया की तरफ जब निकाला है तो वैसे करनी अपनी माँ के कदम छूट के निकल जाते हैं, मदीने की तरफ जाने वाले काफले में शामिल हो जाते हैं। हजरत वैसे करनी उसी काफले के साथ में जा रहे हैं, रास्ते में जो काफला था उन्हें जब भूख लगती थी तो खाना भी खाया करते थे, जब थक जाते थे तो अपना पड़ाव डाल लिया करते थे किसी दरख्त के नीचे, लेकिन वैसे करनी के पास में बैठने का वक्त नहीं था। हजरत वैसे करनी वहां नहीं रुकते हैं, दौड़ते चले जाते हैं, मदीने की सरहदों के करीब पहुंचे हैं, और मदीने के अंदर जैसे ही एंट्री की है हजरत वैसे करनी ने तो छोटे छोटे बच्चों से मुलाकात होती है। हजरत वैसे करनी बच्चों से कहते हैं बच्चों तुम्हारी शान कितनी बुलंदबाला है, तुम मुस्तफा के मदीने में अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, तुम मेरे पैगंबर के मदीने के अंदर अपनी सांसें ले रहे हो। ऐ बच्चों मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ जरा ये बताओ कि पैगंबर इस्लाम इस वक्त कहाँ पर मिलेंगे, मैं उनसे मुलाकात करने के लिए कर्ज से आया हुआ हूँ। बच्चों ने जब कंडीशन देखी थी हजरत वैसे करनी की, बच्चों ने जब हालत देखी थी हजरत वैसे करनी की, तो आपस में हंस भी रहे थे और कह रहे थे देखो तो दीवाना आया है कर्ज से, इसके बदन में फटा हुआ लिबास है, इसकी जुल्फें बिखरी हुई है, पैटों पैरों में टूटी हुई चप्पलें हैं, ये पैगंबर से मुलाकात करने के लिए आया है। तो हजरत वैसे करनी बच्चों से कहते हैं बच्चों बताओ तो सही मुस्तफा कहाँ मिलेंगे। तो बच्चों ने कहा था जाओ इस वक्त मस्जिद नबवी शरीफ में जाकर के देख लो, हो सकता है पैगंबर मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर हो। हजरत वैसे करनी चले जाते हैं मस्जिद के दरवाजे पे, जैसे ही पहुंचे हैं जाकर के किसी दूसरे से मुलाकात हुई, पूछते हैं उवैस इंसान जरा ये तो बता देगा मस्जिद के अंदर पैगंबर है कि नहीं है। तो आवाज देने वाले ने बताया था ऐ आने वाले दीवाने तेरे मुस्तफा मस्जिद नबवी के अंदर नहीं है, अगर तुझे पैगंबर से मुलाकात करना है तो जब चला जा हुजरा आयशा के अंदर मुस्तफा आराम कर रहे होंगे। लेकिन जब इम्तिहान होता है आशिकी का तो ऐसे ही हुआ करता है, जब इश्क का इम्तिहान होता है तो ऐसे ही हुआ करता है। हजरत वो वैसे करने को मेरे पैगंबर मस्जिद नबवी में नहीं मिले हैं। बताने वाले ने जब बताया कि जाओ हजरत आयशा के हुजरे में चले जाओ, तो पहुंच जाते हैं उबैद हुजरे के पास में, और जाकर के दरवाजे पे दस्तक देते हैं। अंदर से आवाज आती है कौन है जिसने दरवाजे को खटखटाया है, कौन है जिसने दरवाजे को हिलाया है, कौन है जिसने दरवाजे पे आकर के जुम्बिश दी है। तो हजरत वैसे करनी कहते हैं कोई और नहीं बल्कि कर्न से मुस्तफा का एक दीवाना आया हुआ है पैगंबर से मुलाकात करने के लिए। मैं मुस्तफा अगर अंदर हो तो दरवाजा खोल दीजिए। तो हजरत आयशा फरमाती है आने वाले दीवाने सुन ले, तूने आने में ताखीर कर दी, तू आने में लेट हो गया, पैगंबर अभी निकल के हुजरे से चले गए हैं। जब इतना सुना था हजरत वैसे करनी ने, तो हजरत वैसे करनी का कलेजा मुंह को आने लगता है, आंख से आंसू सावन और भादों की तरह जमीन पे टप टप गिरने लगे गए। रो करके हजरत वैसे करनी कहते हैं अपनी आयशा में कर्म से चल के मदीने का सफर पैदल किया, अगर मुस्तफा को देखने के लिए आया हुआ हूँ।
اور آپ یہ کیا کہہ رہی ہو کہ پیغمبر ابھی حجرے سے نکل کے چلے گئے، میں نے پیغمبر اسلام کا دیدار نہیں کیا، تب کہیں جا کے دیدار کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں۔ تو حضرت عائشہ کہتی ہے اے دیوانے، تو نے آنے میں تاخیر کر دی، اگر تو پہلے آیا ہوتا تو آج تیری پیغمبر اسلام سے ملاقات ہو جاتی۔ تو حضرت اویس کرنی کہتے ہیں امی عائشہ سن لو، اگر میرے محمد مجھے نہیں ملے ہیں تو مجھے وہی جگہ دکھا دو جس جگہ پہ میرے پیغمبر بیٹھا کرتے ہیں، میں اس مسند کو بوسہ دینا چاہتا ہوں جس مسند کی ٹیک میرے پیغمبر لگایا کرتے ہیں، میں اس ستون کو چومنا چاہتا ہوں جس ستون سے ٹیک لگا کر کے میرے مصطفیٰ بیٹھا کرتے ہیں۔ کبھی اتنا سنا تھا حضرت عائشہ نے تو دیوانے کی چیخ کی رونے کی آواز سن کے دروازے کو کھولا گئے اور پردے کی آڑ سے دیکھ رہی ہے حضرت عائشہ۔ دیوانہ جیسے ہی اندر گھسا تھا تو اس مسند کو ایسے چوم رہا تھا جیسے کوئی ماں اپنے 6 مہینے کے لال کو کلیجے سے لگاتی ہے، اس مسند کو ایسے بوسے دے رہا تھا جیسے ماں اپنے چھاتی سے چپٹا کر کے اپنے بچے کو پستان سے دودھ پلایا کرتی ہے۔ اتنی محبت کرنے والا اویس اپنے آقا سے ستون کو بوسے دیتا ہے، کہیں زمین کو بوسے دیتا ہے۔ جب اتنا دیکھا تھا حضرت عائشہ نے اپنی آنکھوں سے، تو عائشہ کہتی ہے دیوانے سن لے، جب تو اتنا سچا پیار کرتا ہے مصطفیٰ جان رحمت سے، جب تو اتنا سچا عشق کرتا ہے پیغمبر اسلام سے، جب تو اتنی ممتا کرتا ہے اپنے محمد سے، تو کچھ منٹ یہاں ٹھہر کیوں نہیں جاتا؟ مصطفیٰ آ جائیں گے تو دیدار کر لینا۔ تو حضرت اویس کرنی نے کہا تھا ماں عائشہ سن لو، میں اپنی ماں سے فائدہ کر کے آیا ہوں، میرے پاس میں ٹھہرنے کا وقت نہیں ہے، میں سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں لیکن اپنی ماں سے فائدہ کیا ہوا پامال نہیں کر سکتا۔ کبھی اتنا سنا تھا حضرت عائشہ نے، تو حضرت عائشہ کہتی ہے اویس پھر تیری مرضی ہے، تو جہاں جائے چلا جا۔ اب اویس کرنی پھر دوڑ لگاتے ہیں اور میرے آقا کے حجرے شریف سے نکل جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ کے حجرے سے جیسے ہی نکلے ہیں میرے پیغمبر تشریف لے آئے، آ کر کے اپنے سینے کا بٹن کھولا ہے میرے مصطفیٰ نے، اور لمبی لمبی سانسیں لے رہے تھے اور اپنے شریک حیات عائشہ سے کہہ رہے تھے عائشہ بتاؤ تو صحیح کون آیا تھا آج ہمارے مکان کے اندر جو گھر اتنا مہک رہا ہے؟ ارے وہ محمد اس اویس کی خوشبو کو ملاحظہ کر رہا ہے جس پیغمبر کے پسینے کو، جس پیغمبر کے پسینے کی خوشبو سے مشک و زعفران معطر ہے، جس پیغمبر کے پسینے کی خوشبو کی وجہ سے گلاب اور بیلا بہک رہا ہے، لیکن اس کے مکان کے اندر اس کا چاہنے والا اویس جب آیا ہے تو میرے آقا کہہ رہے ہیں عائشہ بتاؤ کون آیا تھا ہمارے گھر میں جس کے آنے کی وجہ سے پورا گھر معطر ہو رہا ہے، پورے گھر کی دیواروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو عائشہ کہتی ہے اے میرے آقا، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائے، قرن سے ایک دیوانہ آیا تھا جس کے بدن پہ پھٹا ہوا لباس تھا، جس کی زلفیں بکھری ہوئی تھی، جس کا چہرہ کردہ آلودہ تھا، پیر میں ٹوٹی ہوئی چپلیں تھی، لیکن تم سے ملاقات کرنے کے لیے بڑا ہی بے چین و بے قرار تھا۔ جب آپ کا دیدار اس سے نہ ہو سکا تو آپ کی مسند کو ایسے چوم رہا تھا جیسے ماں اپنے لال کو کلیجے سے لگاتی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ کے لبوں پہ تبسم کھیلنے لگتی ہے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ تمہیں پتا تھا وہ کون تھا؟ حضرت امی عائشہ کہتی ہے نہیں میں نہیں جانتی وہ کون تھا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ وہ کوئی اور نہیں میرا دیوانہ اویس تھا، اس کی شان اتنی بلند ہے کہ پروردگار عالم اس کو اتنا پسند کرتا ہے کہ اس کی دعاؤں کے طفیل میرا رب میری آدھی امت کی بخشش کر دے گا۔ میرے آقا جب اتنا کہتے ہیں حضرت عائشہ سے تو عائشہ کہتی ہے تو یا رسول اللہ پھر آپ کا دیدار کرنے کے لیے وہ یہاں رکا کیوں نہیں جب اتنا آپ کا دیوانہ چہید آ گئے؟ تو پیغمبر کہتے ہیں اس کی ماں اس کے گھر کا انتظار کر رہی ہے، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے کہیں پر بھی نہیں رک سکتا۔ یہ اب حضرت اویس کرنی اپنے مکان پہ پہنچ گئے ہیں، جیسے ہی اپنے مکان کے اندر داخل ہوتے ہیں ماں پوچھتی ہے میرے لال اب تو اپنے پیغمبر کو دیکھ کر کے آیا ہے، بتا تو صحیح تیرا پیغمبر جب چلتا ہے تو کیسا لگتا ہے، جب بولتا ہے تو کیسا لگتا ہے، جب ہنستا ہے تو محمد کیسا لگتا ہے؟ جب اتنا کہا تھا اپنی نے تو حضرت اویس کرنی کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اویس کرنی کہتے ہیں میری ماں سن لو، میں
पैगंबर का दीदार नहीं कर सका तो माँ ने कहा था मेरे लाल बता तो सही तू मुस्तफा का दीदार क्यों नहीं करके आया है। तो हजरत उवैस करनी कहते हैं मेरी माँ मेरे जाने में ताखीर हो गई, पैगंबर अपने हुजरे से निकल के जा चुके थे। तो माँ कहती है मेरे लाल फिर कुछ देर वहीं पे ठहर जाता, जब गया था तो दीदार करके ही वापस होता। तो वैसे करनी कहते हैं मेरी माँ मैं तुमसे वादा करके गया था, मैं तुम्हारे वादे को वायदा खिलाफी में नहीं तब्दील करना चाहता था, मैं तुम्हारे वादे को पामाल नहीं करना चाहता था। जब इतना सुना था एक माँ ने तो माँ की आंख से आंसू जमीन पे मोती बन के टप टप करने लगे, अपने आंचल को उठाया गया उस नाबीना माँ ने और बारगाह रब्बुल में रो करके दुआ की है मौला जिस मेरे बेटे उवैस ने मेरी मोहब्बत में मुस्तफा का दीदार तर्क कर दिया, परवरदिगार आलम तू मेरे बेटे उवैस की शान को इतना बुलंद कर दे कि पूरी दुनिया जो पैगंबर की बात करे और पैगंबर इस्लाम मेरे उवैस की बात करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत हज़रत अल्लामा मौलाना समीर रज़वी साहब किबला सरज़मीने करवा साहिबान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वैसे करनी नहीं सिर्फ माँ की ममता की वजह से मुस्तफा का दीदार नहीं किया। दौर में रहे थे पैगंबर के, मुस्तफा के जमाने में रहे थे, मुस्तफा का जमाना देखा था, लेकिन पैगंबर को नहीं देख पाए, इसलिए कि मेरे रब ने जितनी जगह अपना जिक्र किया है अपने हुकूक के साथ में, अपने हक के साथ में वालिदैन का हक भी बयान किया है, उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। अगर आप लोगों के माँ बाप आपसे नाराज हैं तो आप मर जाइए मस्जिद के अंदर सजदे करते करते अपनी पेशानी से खून निकाल लीजिए, लेकिन जब तक कि आपके माँ बाप आपसे राजी नहीं होंगे परवरदिगार आलम भी आपसे राजी नहीं हो सकता। ये माँ बाप की शान है, इस्लाम के मुक़द्दस जहदादो। माँ के कदमों के नीचे अल्लाह ने जन्नत को रखा है, वजह सिर्फ यही है कि माँ की शान बड़ी ही बुलंदो बाला है, माँ की असमत बहुत बुलंदो बाला है, बाप का पावर अपनी जगह है, बाप की शान अपनी जगह है। जब तक कि आप माँ बाप को राजी नहीं करोगे आपसे आपका रब भी राजी नहीं होगा। आज की रात बड़ी ही बाबरकत रात थी, आज की रात में होना तो ये चाहिए था। आज सोशल मीडिया का जमाना है, प्रिंट मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, लोग मोबाइल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए माफी नामा एक दूसरे को पहुंचाते हैं और बताना चाहते हैं कि हम तुझसे माफी मांग रहे हैं। नादान तेरी माफी नामा ऐसे कबूल नहीं होगा। तेरा बाप तुझसे नाराज टूटी हुई चारपाई पे लेटा हुआ है, दवाई के लिए हर वक्त वो तड़पता रहता है, तू उसे कभी दो पैसे दवाई के लिए नहीं देता है। तेरी माँ का तूने दिल दुखाया है, तेरी माँ तुझसे नाराज है, तेरे घर के अंदर मौजूद है। तू अपने माँ बाप से कभी नहीं कहता कि बाप अगर तुम्हारा दिल मुझसे किसी तरीके से टूट गया हो तो आज की रात के वसीले से मुझे माफ कर दो, इसलिए कि आज मेरा हिसाब किताब अल्लाह की बारगाह में होगा। आज ही से पूरी साल का किसको कितना रिस्क मिलना है, कौन कितना परेशान रहेगा, ये आज ही की रात में फैसला हुआ करता है। हम बाप से कभी नहीं पूछा करते, हम माँ से कभी नहीं पूछते हैं, मोबाइल फोन के जरिए एक दूसरे को मैसेज किया करते हैं। लोगों ये गलती मत किया करो, अगर तुम्हें किसी से तुम्हें माफी भी मांगना है तो हक होते हैं बंदे पर, एक होता है हुकूकुल्लाह और दूसरा होता है हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह तो अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन जो बंदे का हक बंदे पर है, जब तक बंदा बंदे को माफ नहीं करेगा, जब तक के बंदा खुदा जब तक माफ नहीं करेगा तो परवरदिगार आलम भी आपको माफ नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो कि आप किसी से माफी मांगना चाहते हो, परवरदिगार आलम की बारगाह में उससे माफी तलाफी मत करो, बल्कि जिसका तुमने दिल दुखाया है पहले उससे माफी मांग लो। अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया तो परवरदिगार आलम भी तुम्हें माफ कर देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस, मसलके आला हजरत, ख्वाजा हिंदुस्तान, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, मकनपुर शरीफ, बरेली शरीफ। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए गौस।
सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। नारा लगा रहे हैं, कम से कम इतने लोग बोलो आवाज गूंज जाएगी। इल्म ही से इंसान इंसान है और इल्म जो न सीखे वो है बाग है। चाहते हो कर सवेरा इल्म हासिल कीजिए, दूर करना है अंधेरा इल्म हासिल कीजिए। आंख भी है कान भी है पर बिना इल्म व हुनर, आदमी है अंधा बहरा इल्म हासिल कीजिए। ये इल्म ना होने की वजह है जो आपकी कंडीशन इस वक्त मैं ऐसे देख रहा हूँ। काश आपने दीन सीखा होता, काश आपने इस्लाम को समझा होता करीब से कि इस्लाम क्या है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके रहनुमा ने आवाज बुलंद की है। अगर हमारा मुक्तदा अगर सिर्फ आंख का इशारा कर दे तो कौम के अंदर इतनी सलाहियत होना चाहिए कि जुबान हिलाने की बात तो दूर है, अगर नजर का इशारा हमें हो जाए तो हमें समझ जाना चाहिए। कोहताई सिर्फ हमारी यहीं पर है कि हम इल्म दीन से आरास्ता नहीं है, हमने दीन सीखा नहीं है, इल्म से हम दूर हैं। अगर हमने इल्म दीन को सीखा होता तब हमें पता चलता कि हमारा इस्लाम क्या है, हमारा धर्म जो है वो पैगाम क्या देता है, हमें कुरान बताना क्या चाहता है, हमें सरकार की हदीस क्या बताना चाहती है। बात जब इल्म की आ गई तो आइए मैं एक और इल्म वाले की बात करे देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मैंने कहा था ना, दूर करना है अंधेरा इल्म हासिल कीजिए, दूर करना है अंधेरा इल्म हासिल कीजिए। कान भी है आंख भी है पर बिना इल्म हुनर, आदमी है अंधा बहरा इल्म हासिल कीजिए। आप जानते हो बसरा के अंदर एक बहुत बड़ी जात रहा करती थी जिसको पूरी दुनिया इल्म अदब का कोहे हिमाला हजरत इमाम हसन बसरी के नाम से दुनिया याद करती थी। और उसी बसरा के अंदर एक बहुत बड़ी शहजादी रहा करती थी जिसको पूरी दुनिया हजरत राबिया बसरी के नाम से याद करती थी। राबिया को राबिया क्यों कहा जाता है? राबिया इसलिए कहा जाता है ये चौथे नंबर पे पैदा होने वाली थी, इसलिए इनको राबिया कहा जाता था। और इनके नाम से बसरा इसलिए जोड़ा जाता था कि ये शहर बसरा से इसका ताल्लुक था। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा, आखिरी बात करके मैं आप हजरात को उससे रुखसत होना चाहता हूँ। हजरत इमाम हसन बसरी भी बसरा में रहते थे और हजरत राबिया बसरी भी रहा करती थी। हजरत राबिया के शौहर का इंतकाल हो चुका था जवानी में। हजरत राबिया देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, राबिया देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम नहीं थी, राबिया का कद बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं था, पस्त कद की थी, लेकिन अपने अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगी रहती थी। जब जब उनको उनका नफ्स उनको नींद की तरफ ले जाता था, बिस्तर की तरफ ले जाता था, तो अपने बालों को खींच करके बालों से मलामत किया करती थी और कहती थी, ऐ मेरे नफ्स तू कब तक मुझे बिस्तर की तरफ लेटने के लिए सुलाने के लिए ले जाता रहेगा? अरे एक दिन तो मरने के बाद में मुझे कब्र में सोना ही है। और किसी ने आते वक्त मेरे कान में कहा था, हजरत थोड़ी सी रोशनी कब्र पे भी डाल दीजिएगा। तो ये कौम क्या समझेगी अपने मरने वालों को? अरे लोगों, कब्रिस्तान में लाख दो लाख की डेकोरेशन कराने से कुछ नहीं होता है। अगर तुम दुनिया के उनकी कब्र के ऊपर चाहे पूरी दुनिया की रोशनी लगा दीजिए, लेकिन उनकी कब्र के अंदर उस वक्त तक अंधेरा रहेगा जब तक कि अपने मरने वालों के लिए तुम इसाले सवाब नहीं कर दोगे। अगर तुम अपने मरने वाले की कब्र में कोई कुमकुमा लगाना चाहते हो, अगर अपने मरने वाले की कब्र में कोई लाइट लगाना चाहते हो, तो अपने मरने वाले के लिए इसाले सवाब करना पड़ेगा। अरे मेरे नबी की हदीस से बात है, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, फल बंजतो फिल कब्र इन्नकल गरीकल मुनअफिस मिन अबिन औ उम्मिन औ अखिन औ सदीकिन। अरे मरने वाले की मिसाल वैसी ही है जैसे कि दुनिया में दरिया में डूबने वाला इंसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ। जब दरिया के अंदर, समंदर के अंदर कोई इंसान डूबता होता है तो उसके दिल में हजरत रह के ये ख्याल आता है, काश कोई आ जाता, आकर के मुझे उंगली का सहारा दे देता और मैं डूबने से बच जाता। मेरा बाप आ जाता जिसने मुझे अपने खून से परवान चलाया है, मेरा बाप आकर के मुझे उंगली का सहारा दे देता, मैं दरिया में डूबने से बच जाता। अगर उसे कोई सहारा आखिर में नहीं देता है तो उसके दिल में रह के ये ख्याल आता है, मुझे कोई मेरा भाई आकर के दरिया में डूबने से नहीं बचा रहा है। ऐ परवरदिगार आलम, काश कोई मेरे हाथ में घास का तिनका ही आ जाए और मैं उस तिनके को पकड़ लूं और इस दरिया के अंदर डूबने से बच जाऊं। ये हमारे डूबने वाले के दिल के अंदर ख्याल रह के आता है। इसी तरीके से जैसे दरिया में डूबने वाला समझा करता है, सोचा करता है, इसी तरीके से जो मेरा बाप कब्रिस्तान के अंदर कब्र के अंदर लेटा हुआ है, जो तेरा बाप कब्र के अंदर तेरे कब्रिस्तान में लेटा हुआ है, जो तेरी माँ
سے میرے گناہوں میں تخفیف کر دیتا، میرے گناہ کم ہو جاتے۔ یہ ہمارا مرنے والا سوچا کرتا ہے، اور یہ میری قوم ہے جو ٹرینڈنگ ہے، جب بھی جہاں پر تو کبھی بولنے کے لیے تیار نہیں رہتی ہے، ہر وقت گونگا بن کے رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تم نہیں بول رہے ہو، پوری دنیا تمہارے اوپر بھونکتی ہوئی نظر آ رہی ہے، پوری دنیا تمہارے اوپر بول رہی ہے۔ اگر تم بولتے ہوتے تو دنیا تمہارے اوپر نہیں بولتی، بلکہ تم دنیا والوں کے اوپر بولتے ہوئے نظر آتے۔ اور مرنا ہر شخص کو ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو مرے گا نہیں۔ ایک شخص جو دنیا میں آیا ہے وہ مر کے ہندوستان کو چھوڑ کے قبرستان ضرور جائے گا۔ تبھی تو علامہ کافی نے کہا تھا کوئی دل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین غزل رہ جائے گا۔ اطلس و غمخاب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس طرح بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ مرنا ہے تو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری ضرور کر لو، اسلام کے مقدس شہزادوں۔ ہر شخص دنیا میں مسافر ہے، اور ہماری منزل جو ہے وہ موت ہے، وہ قبر ہے۔ مرنا ضرور ہے، ہر شخص کا ٹکٹ ویٹنگ میں ہے، کس دن کس کا ٹکٹ کنفرم ہو جائے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مرنا ہر شخص کو ہے، اور میں تو کہتا ہوں اللہ والے بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جس کے صدقے میں رب نے پوری دنیا کو بنایا ہے، اسی کو پوری دنیا مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ میرے مصطفیٰ کو بھی موت آئی ہے، یہ الگ بات ہے۔ میرے پیغمبر ایک آن کے لیے دنیا سے گئے ہیں، میرے پیغمبر کو بھی موت آئی ہے، اس لیے کہ میرے رب نے قرآن میں فرما دیا ہے نا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تمام چیزیں فنا ہو جائیں گی، باقی رہنے والی ذات پروردگار عالم کی ہے۔ اور دوسرے مقام پر رب ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہماری تو کل آپ کی باری ہے۔ مرنا ہر شخص کو ہے، تو لوگوں مرنے سے پہلے آپ اپنی تیاری کر لو۔ آپ نے دیکھا نہیں جب آپ اپنے باپ کی قبر پہ نہیں جاتے ہو تو تمہاری اولاد کہاں تمہاری قبر پہ جائے گی؟ اتنے نامہ اعمال اپنے پاس میں اکٹھا کر لو، جمع کر لو، اتنے نامہ اعمال اپنے پاس میں نیکیاں اتنی جمع کر لو، تاکہ جب تم قبر کے اندر جاؤ، جب تمہارا جنازہ اٹھے تو تمہاری بستی کے لوگ یہ نہ کہیں کسی دنیا دار کا جنازہ جا رہا ہے، بلکہ زمانے سے آپ کی بستی سے، آپ کے علاقے، آپ کے شہر سے، آپ کے قریہ سے، آپ کے گاؤں سے یہ آواز آنی چاہیے۔ ارے آج جو انسان دنیا چھوڑ کر کے جا رہا ہے، آج ایک شخص کا جنازہ ہم اپنے کاندھے پہ لے کر کے جا رہے ہیں، یہ کوئی دنیا دار نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے۔ جب اس حالت میں دنیا سے جاؤ گے تو دنیا کے نظارے تمہارے لیے ہوں گے، جنت کی بہاریں تمہارے لیے ہوں گے۔ سبحان اللہ بے شک۔ لیکن ہم ہیں کہ کبھی کوئی اگر نیکیاں کمانے کا موقع بھی ہمیں دے دیتا ہے تو ہم نیکیاں کمانے کے لیے تیار نہیں رہتے۔ بے شک قسمت سے، نصیبے سے اگر یہ محفلیں ہمارے مقدر میں آ جائیں تو لوگوں غنیمت سمجھا کرو ان کو، اور نیکیاں کمانے کے لیے ہر وقت ہم گوش رہا کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ نیکیاں کماؤ گے تو اس میں میرا فائدہ نہیں ہوگا، اس میں آپ کے اپنے امام کا فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا اپنا ہی فائدہ ہوگا۔ بے بے شک شک۔ کہنے کو بہت کچھ تھا، لیکن میں نے جتنا بول دیا ہے، آپ نے جس طرح سن لیا ہے، فقط لسانی کی وجہ سے انسان ہونے کے ناطے حضرت اور سنا حضرت۔ چلیے وہ بات سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوڑیے۔ ادھر ادھر اگر لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں تو جو باؤنڈری لائن کے اندر ہوتے ہیں وہی ان کا شمار کھلاڑیوں میں ہوا کرتا ہے، اور جو باؤنڈری لائن کے باہر ہوتے ہیں ان کو درشک کہا جاتا ہے۔ تو جو درشک ہوتے ہیں ان کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی ہے جتنی
खिलाड़ियों की हुआ करती है। इस वक्त आप जन्नत के खिलाड़ी मेरे सामने हैं। ये दर्शक थे, इनकी कोई हैसियत नहीं है, ये लोग चले गए। और मैं तो इनसे कहता हूँ आप इतने पीछे चले जाइए कि जहाँ से आपको 1400 साल पुराना मंदिर दिखाई देने लगे। आप सुनते चले जाइएगा। आखिरी बात मैं वही बसरा तक आप तक ले जाने लगा हूँ। हजरत इमाम हसन बसरी और हजरत राबिया की बात कर रहा था। राबिया को राबिया क्यों कहा जाता है? ये राबिया इसलिए कहा जाता है चौथे नंबर पे पैदा होने वाली थी। बसरा इनके नाम से इसलिए जोड़ा जाता है, ये शहर बसरा से ताल्लुक था इनका। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, ये दौरे पुरफितन में एक बीमारी भी चल रही है, उस बीमारी का भी इलाज मैं करना चाहता हूँ। हजरत इमाम हसन बसरी अपने वक्त के बहुत बड़े सरकार के दीन के आलिम थे। बसरा के अंदर बड़े बड़े मसाइल जब उलझा करते थे तो लोग उन मसाइल का हल करने के लिए किसी और के पास में नहीं, हजरत इमाम हसन बसरी के पास में जाया करते थे। और हजरत इमाम हसन बसरी तमाम मसाइल के जवाब देते हुए नजर आते थे। अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम भी थे, अपने वक्त के बहुत बड़े हैंडसम भी थे, बहुत बड़े खूबसूरत महजबी और महबारा भी थे। लेकिन आज के सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हजरत इमाम हसन बसरी की शादी नहीं हुई थी। बसरा के बड़े बड़े अमीर आदम लोगों ने, बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने, दौलत वाले लोगों ने, बड़े बड़े सरमायादार लोगों ने अपनी खूबसूरत बेटियों के रिश्ते हजरत इमाम हसन बसरी के लिए भेजे थे। लेकिन हजरत इमाम हसन बसरी ने किसी के रिश्ते को कबूल नहीं किया था, किसी के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया था। इसलिए कि अल्लाह वालों को हम क्या जानेंगे, अल्लाह वालों को तो अल्लाह वाले ही पहचाना करते हैं। अरे वली को वली ही पहचाना करता है, तभी तो शेख सादी कहते हैं वली ना वली की शनासत, वली को वली ही पहचाना करता है। इस्लाम का मुकद्दस शहजादों, हजरत इमाम हसन बसरी ने किसी की बेटी के रिश्ते को कबूल नहीं किया था। हजरत इमाम हसन बसरी के दिल में ख्याल पैदा होता है बसरा के अंदर एक अल्लाह की बड़ी बरगुज़ीदा बंदी रहा करती है। बसरा के अंदर मेरे आका की सैयदा फातिमा की बहुत बड़ी कनीज रहा करती है, जिसको पूरी दुनिया हजरत राबिया बसरी के नाम से याद करती है। और उनके शौहर का इंतकाल हो चुका है, वो बेबदी की जिंदगी गुजर बसर कर रही है। लेकिन ये हसन इतना खूबसूरत और वो राबिया देखने में भी खूबसूरत नहीं थी। हजरत इमाम हसन बसरी के दिल में ख्याल पैदा होता है हसन अगर तुम निकाह करोगे ना, अगर तुम शादी करोगे तो तुम शादी किसी और से नहीं बल्कि बेबा राबिया से तुम्हारा निकाह होगा। ये हजरत इमाम हसन बसरी खुद से सवाल कर रहे हैं। और हजरत इमाम हसन बसरी अपने मकान के दरवाजे से निकलते हैं, राबिया की टूटी हुई झोपड़ी की तरफ रखते सफर बांध लिया है। राबिया के दरवाजे के करीब पहुंच करके दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है राबिया की, कौन है जिसने आने की जुर्रत और जसारत मेरे दरवाजे पे की है? कौन है जिसने आकर के मेरे दरवाजे पे चुप कुश्ती है? कौन है जिसने आकर के मेरे दरवाजे को हिलाया है, खटखटाया है? कभी तो ना कहा था हजरत राबिया ने, तो हजरत इमाम हसन बसरी कहते हैं राबिया सुन लो, तुम्हारे दरवाजे पे कोई और नहीं बल्कि अपने वक्त का हसन आया हुआ है। अपने वक्त का हसन तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। तो राबिया कहती है हसन बताओ तो सही तुम्हारे आने के उसूल क्या है, तुम्हारे आने का ज़ाब्ता क्या है, तुम्हारे आने की कर्ज़ुगायत क्या है, तुम्हारे आने का सबब क्या है, तुम्हारे आने का उसूल क्या है? जब हजरत इमाम हसन बसरी ने इतना सुना था तो राबिया से इमाम हसन बसरी कहते हैं राबिया सुन लो, मुझे मालूम है तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया है, तुम बेबदी की जिंदगी गुजर बसर कर रही हो, और तुम्हें यह भी मालूम है कि हसन ने अभी तक शादी नहीं की है, और तुम इतना भी जानती हो कि बसरा के बड़े बड़े दौलत वाले लोगों ने, बड़े बड़े सूरमाओं ने अपनी लड़कियों के, अपने बेटियों के रिश्ते मेरे दरवाजे पे भेजे हैं। लेकिन मैंने किसी की बेटी को अपने निकाह में लेने के लिए इजाजत नहीं दी है। मेरा दिल आज ये फैसला कर चुका है, मैंने अपने दिल के अंदर इस बात का मैंने इरादा कर लिया है, अहिद कर लिया है, राबिया अगर तुम इजाजत दोगी तो हसन तुमसे निकाह करना चाहता है। जब इतना कहा था हजरत इमाम हसन बसरी ने, और मैं अपनी कौम के नौजवानों को भी झंझोड़ना चाहता हूँ, उनके दिल के दरीचे पर दस्तक देना चाहता हूँ। लोगों, अगर आपका जब निकाह किसी के साथ में होना होता है, अगर तुम्हारे माँ बाप किसी की बेटी के साथ में तुम्हारा रिश्ता करना चाहते हैं, और कोई दुनिया का निकम्मा इंसान तुम्हारे कान में ये गलत मैसेज डाल देता है कि लड़के सुन ले, अरे तेरा जिससे निकाह होने जा रहा है, तेरा जिस लड़की से शादी होने जा रही है, रिश्ता होने जा रहा है, जो लड़की देखने में अच्छी नहीं है, उसका कलर थोड़ा सा सांवला है, जब इतना सुन लेता है नौजवान तो अपने बाप से आकड़ के कहता है, अपने बाप से तेज आवाज में कहता है मेरे बाप सुन लो, तुम जिस लड़की से मेरा निकाह करने के लिए मेरा रिश्ता करना चाहते
चाहती हो, अरे वो तो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, मैं तो उससे निकाह नहीं करूंगा। और अगर तुमने जिद पर मेरा निकाह उससे कर दिया तो मैं अपने बस्ती को छोड़ के दूसरी जगह पर चला जाऊंगा। जिससे तुम मेरा निकाह कर रहे हो उसको तुम्ही को रखना पड़ेगा। ये औलाद अपने बाप से सवाल करती है, नादान सुन ले, अरे तेरा जिससे निकाह हो वो देखने में खूबसूरत नहीं हो, लेकिन कलमा के अंदर रहने वालों मस्जिद के अंदर जाकर के अपने सर को सजदे में रख के अल्लाह के हुजूर ये दुआ किया करो, मौला मेरा निकाह जिस बेटी से हो वो बेटी बता के देखने में अच्छी हो न हो, लेकिन उसका किरदार उसका कैरेक्टर इतना अच्छा होना चाहिए कि जब उस बेटी का कदम मेरे घर के अंदर आए तो मेरा घर नहीं बल्कि मिसले जन्नत बन जाना चाहिए। अगर आप ये इरादा लेकर के किसी की बेटी से निकाह करोगे तो सोचते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, तुम्हारा निकाह तो होगा ही, लेकिन आपकी इस दुआ से परवरदिगार आलम राजी हो जाएगा। जब तेरा अल्लाह तुमसे राजी हो जाएगा तो निकाह के बाद में तुम्हें जो बरकतें मिलेगी वो तुम्हें पता चल जाएंगी। इसलिए कि कुरान में मेरा रब इरशाद फरमाता है, फुकरा इन युगनिहुमुल्लाह, लोगों तुम निकाह करो, अगर गरीब होगे तो अमीर बना दिए जाओगे। लोगों तुम निकाह करो, अगर तुम गुर्बत का शिकार होगे तो अमीरी की तरफ तुम्हारा मुकद्दर पहुंच जाएगा। अरे आपको पता नहीं है जुलैबीब की कंडीशन क्या थी? जो मेरे आका के काले रंग के सहाबी थे, मेरे आका की बारगाह में सुबह शाम हाजिरी दिया करते थे। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में सूरज जब निकलता था तो अपने काम को हाथ बात में लगाते थे, पहले पैगंबर का दीदार किया करते थे। शाम को अपने बिस्तर में बाद में जाते थे, पहले मुस्तफा का दीदार कर लिया करते थे। मेरे पैगंबर ने एक दिन इरशाद फरमाया था, जुलैबीब तुम शादी तो नहीं कर लेते? तो जुलैबीब ने कहा था, या रसूल अल्लाह अलैहि सलातो व तस्लीम, जिस जुलैबीब के पास में खाने के लिए खाना नहीं है, जिस जुलैबीब के पास में सर छिपाने के लिए अपना खुद की झोपड़ी नहीं है, छत नहीं है, अगर वो जुलैबीब किसी की बेटी को अपने निकाह में लेकर के आएगा तो उसको मैं खिलाऊंगा क्या, उसको रखूंगा कहाँ? मेरे पास में रहने के लिए घर भी नहीं है। लेकिन इरशाद किसी और ने नहीं फरमाया था, एक गुलाम से एक आका कह रहा था, और आका भी ऐसा जो आकाओं का आका है। मेरे पैगंबर ने जब इतना कहा, मुख्तसर ये कि मुझे ये बात करना नहीं थी, लेकिन बात आ गई तो बता रहा हूँ। जुलैबीब ने मुस्तफा के कहने पर शादी कर ली, और शादी करने के बाद में जब निकाह हो गया जुलैबीब का, तो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, मेरे आका ने जुलैबीब के लिए दुआ कर दी, परवरदिगार इस जुलैबीब का अब निकाह हो गया है, तू इसके रिस्क में बरकतें अता फरमा दे, इसके रिस्क में बरकतें अता फरमा दे। मेरे नबी ने जब जुलैबीब के लिए दुआ की थी और वो दुआ बारगाह रब्बुल आला में कबूल हुई थी। जिस जुलैबीब के पास में अपने पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, जिस जुलैबीब के पास में अपना रहने के लिए मकान नहीं था, जिस जुलैबीब के पास में खाने के लिए खाना नहीं था, दुआ के बाद में वक्त यहाँ तक अमीरी पहुंच जाती है कि मक्के के अंदर जो सबसे ज्यादा महंगा लिबास पहना करती थी वो कोई और नहीं थी बल्कि हजरत जुलैबीब की बीबी ही थी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। बदन पे फटा हुआ लिबास था, आज पूरे मक्के के अंदर सबसे ज्यादा जो महंगा लिबास पहनती थी वो कोई और नहीं, जुलैबीब की बीबी थी। सुभान अल्लाह, सुभान। दुआ ये मत मांगा करो कि हमें लड़की खूबसूरत मिल जाए, उसका चमड़ा बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, उसके चमड़े में बहुत ज्यादा चमक हो, बल्कि उसकी सूरत से ज्यादा दुआ मांगा करो कि उसकी सीरत अच्छी हो। अगर नेक सीरत आपको बीवी मिलेगी तो आपकी औलाद भी अच्छी होगी, अगर आपको नेक सीरत बीवी नहीं मिली तो आपकी औलाद पटरी पे नहीं चल पाएगी, आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार नहीं होगी। इसलिए कि बच्चों का पहला स्कूल, पहला मदरसा, मुझसे इजाजत चाहता हूँ निकाह करने के लिए। तो राबिया ने कहा था, हसन तुम्हें पता है मेरा एक बार निकाह हो गया, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं बेबसी की जिंदगी गुजर बसर कर रही हूँ, मेरा रंग बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं है, मेरा रंग काला है, मैं पस्त कद की हूँ, नाटी हूँ, और तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, मुझसे निकाह करने के लिए क्यों कह रहे हो? लेकिन इधर ये जिद्दोजहद का मामला आगे बढ़ रहा था। हसन इसरार कर रहे थे, राबिया इनकार कर रही थी, लेकिन बहुत ज्यादा बात आगे जब पहुंच जाती है तो राबिया कहती है, हसन अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं। हजरत इमाम हसन बसरी कहने लगे, बताओ कौन सी शर्तें हैं? तो राबिया ने कहा था, इमाम साहब की मोहब्बतें चाहता हूँ, इनकी मोहब्बत को गले में ताबीज की तरह पहनकर आखिरी बात कह के अपने सफर को मैं खत्म कर रहा हूँ। हजरत इमाम हसन बसरी कहते
राबिया बताओ क्या शर्त है। तो राबिया ने कहा था मेरे 4 सवालों के जवाब तुम्हें देना पड़ेंगे, अगर तुमने मेरे 4 सवालों के जवाब दे दिए तब मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी, इजाजत दे दूंगी। जब इतना कहा था राबिया ने तो हसन कहने लगे थे, अपने दिल में खुश हो रहे थे, अरे मैं तो हसन हूं ना, बसरा का बड़ा आलिम मुझे कहा जाता है, बसरा के अंदर बड़े बड़े मसाइल को मैं ही हल किया करता हूं, और ये तो लड़की है तो औरत है औरत, और औरत मर्द की टेढ़ी पसली से पैदा की गई है, औरत तो नाक़िसुल इल्म होती है, अगर इसका कोई सा भी सवाल होगा कितना ही बड़ा मुझसे सवाल करेगी, अरे मैं तो इसका सवाल चुटकियों में देता हुआ नजर आऊंगा, उसके बाद तो मैं इससे निकाह कर ही लूंगा। लेकिन कुर्बान जाइए राबिया की शान पे इस्लाम के मुकद्दस चेहदा दियो, कुर्बान जाइए हजरत राबिया की शान पर, बेटी हो तो ऐसी हो, लड़की हो तो ऐसी हो, खवातीन हो तो ऐसी हो, औरत हो तो राबिया की तरह हो। हजरत राबिया बसरी ने कहा था हसन तुम मेरी शर्तों को मान रहे हो ना, पहले मेरे 4 सवालों के जवाब देने होंगे तब कहीं जाके मैं तुमसे निकाह करने के लिए राजी रहूंगी। जब इतना कहा था हजरत इमाम हसन बसरी से तो राबिया से हसन कहने लगे थे ठीक है करो तो सही पहला सवाल। तो हजरत राबिया का पहला सवाल सुनते चले जाइएगा, इस्लाम के मुकद्दस चेहदा दो। राबिया ने कहा था हसन सुनो मेरा पहला सवाल ये है, ये बताओ हसन जो राबिया तुम्हारे सामने पर्दे की आड़ में खड़ी है, मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ, जरा ये बताओ। जब इतना कहा था हजरत राबिया बसरी ने तो हसन के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। ऐ लोगों जो तुम अपने पंजे के अंदर जन्नती होने का सर्टिफिकेट दबाए फिर रहे हो, जो अपने आप को जन्नत के ठेकेदार बने फिर रहे हो, जो तुम जन्नत के अलमबरदार बने फिर रहे हो, जो अपने आप को तुम अगर तुम एक मतलब जिंदगी में हज करके आ जाते हो तो हज का जो सर्टिफिकेट लेके आता है वो तो अपने आप को जन्नती होने का जन्नत का ठेकेदार समझता है। ऐ लोगों मैं तुम्हारे गाल पे तमाचा रसीद करके और तुम्हारी सूरत को आईने में दिखाना चाहता हूँ। मस्जिद में नमाज पढ़ने तुम नहीं जाते हो, अपने आप को जन्नती बताते हो, वालिदैन के फरमाबरदार तुम नहीं हो, खुद को जन्नती बताते हो, इमाम का ख्याल तुम नहीं रखते हो, खुद को जन्नती बताते हो, इमाम के बच्चे भूखे हैं या प्यासे हैं तुम नहीं पूछते हो और अपने आप को जन्नती बता रहे हो। अरे वो राबिया जो रातों रात अपने अल्लाह को मनाने में लगी रहती थी, वो राबिया जो पूरी दुनिया सोती थी अपने अल्लाह को मनाने में लगी रहती थी, हर वक्त अल्लाह की इबादत और रियाजत किया करती थी, उसको अपने बारे में नहीं पता था कि मैं जन्नती हूँ कि जहन्नमी हूँ। जब इधर सुना था हजरत इमाम हसन बसरी ने तो राबिया के इस सवाल का जवाब हसन नहीं दे पाए थे और कहने लगे थे हसन बसरी सुन ले राबिया, अरे हसन अपने बारे में नहीं जानता है कि मैं जहन्नमी हूँ कि जन्नती हूँ, तो तेरे बारे में कैसे बता सकता हूँ। जलसों में हम तुम्हें जन्नती होने का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, लेकिन पैगंबर की बात पे हमें यकीन कामिल है, हमें पुख्ता यकीन है, अगर आपका खात्मा ईमान के साथ होगा और मुस्तफा आपसे राजी होंगे तब आपको जन्नत मिलेगी, वो भी तब मिलेगी जब परवरदिगार आलम राजी हो जाएगा, जब अल्लाह चाहेगा तब आपको जन्नत होने जन्नत नसीब होगी। हज़रत इमाम हसन बसरी ने कहा था राबिया मैं खुद को नहीं जानता कि मैं जहन्नमी हूँ कि जन्नती हूँ, तो तुम्हारे बारे में क्या बताऊं। जब इतना सुन लिया राबिया ने, अब हसन ने पहले सवाल का जवाब नहीं दे पाई, दूसरा सवाल सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों। राबिया ने कहा था हसन मेरा दूसरा सवाल सुन लो, अगर जवाब दे सकते हो तो। राबिया ने कहा था मेरा दूसरा सवाल ये है, जब मैदान महशर बर्पा होगा तमाम लोगों के नामाए आमाल मीज़ान पर तोले जा रहे होंगे, तो मेरी नेकियों का पलड़ा जो होगा वो भारी होगा कि हल्का होगा, ये बताओ हसन। जब इतना सुना था हजरत इमाम हसन बसरी ने तो आंखों से आंसू साबन और बातों की तरह जमीन पे टप टप गिरने लगते हैं। हजरत इमाम हसन बसरी की चीख निकल जाती है, कहने लगते हैं राबिया ये तूने कौन सा सवाल मुझसे किया है, मैं अपने बारे में नहीं जानता हूँ। जब हसन के नामाए आमाल मीज़ान पे तोले जा रहे होंगे तो हसन की नेकियों का पल्ला हल्का होगा कि भारी होगा, मुझे अपने बारे में नहीं पता, मैं तेरे बारे में कैसे बताऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। जो हसन जिसका जिक्र किताबों के अंदर मौजूद है, उसे उन लोगों को अपने बारे में नहीं पता है कि हमारा मीज़ान पर जब हिसाब किताब तोला जा रहा होगा तो पलड़ा हल्का होगा कि भारी होगा। नेकियां हमारे पास नहीं है और हम नेकियां करने के लिए तैयार नहीं रहते। हसन की आंख से आंसू बहने लगे थे और कहने लगे थे राबिया
میرے پاس تمہارے دوسرے سوال کا جواب نہیں ہے. جو حسن ابھی تک متحرک تھا اب سکونت اختیار کر لی ہے, ساکن کھڑا ہوا ہے. ایسا لگتا تھا جتنے سوال کرتے جاتی تھی رابعہ کے حسن کے نیچے پیروں کے نیچے سے زمین نکلتی جاتی ہو. میرے پاس میں وہ کلیجہ نہیں ہے جو بہت ساری باتیں میں آپ سے کروں. حسن سے تیسرا سوال رابعہ نے کیا تھا. حسن میرے تیسرا سوال یہ ہے کہ جب نامہ اعمال کے رجسٹر میدان محشر میں تمام لوگوں کے ہاتھ میں دیے جا رہے ہوں گے تو حسن یہ بتاؤ جب میرا رجسٹر میرے ہاتھ میں دیا جائے گا تو میرے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا؟ جب حسن نے اتنا سنا تو تیسرے سوال کا جواب بھی حسن نہیں دے پائے. کہنے لگے تھے رابعہ میرے پاس میں تیرے تیسرے سوال کا جواب بھی نہیں ہے. اب اگر آپ کے سینے کے اندر دل ہے اور دل ہے تو میری آخری بات سن لیجیے اپنا دل تھام کے. حضرت امام حسن بصری سے رابعہ کہتی ہیں میں نے تم سے 3 سوال کیے, تم نے میرے تینوں سوالوں کے جواب نہیں دیے ہیں. حسن کہتے ہیں تم نے سوال ہی ایسے کیے ہیں کہ میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے. اب تم چوتھا سوال تو بتاؤ. رابعہ کہتی ہیں حسن سنو, جب پوری دنیا تمہیں معلوم ہے پوری دنیا کا ہر فرد پل سے رات سے گزرے گا اور وہ پل کتنا باریک ہوگا, تلوار سے بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. اگر اس سے کوئی نہ گزرنے والی ذات تھی تو صرف ایک ہی ذات تھی جس کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے بخاری شریف کے اندر کہا ہے بہیا قلبی فاطمہ میرا دل ہے میرا جگر ہے. اگر نہ گزرنے والی کوئی ذات ہوتی تو صرف فاطمہ کی ذات ہوتی. لیکن سجدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سجدہ فاطمہ بھی پل صراط سے گزرے گی. یہ الگ بات ہے کہ ندا ہوگی محشر والوں اپنی نظروں کو جھکا لو, سرکار کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے لیکن گزرے گی ضرور فاطمہ. حضرت رابعہ بصری کہتی ہیں حسن ذرا یہ بتاؤ جب پل صراط سے میں گزروں گی تو گزر جاؤں گی یا کٹ کے نیچے گر جاؤں گی؟ جب اتنا کہا تھا حضرت رابعہ نے تو حسن کہتے ہیں رابعہ میرے پاس میں تمہارے چاروں سوالوں کے جواب نہیں ہے. اس لیے کہ حسن کو اپنے بارے میں نہیں پتا ہے کہ میں پل صراط سے جب گزروں گا تو گزر جاؤں گا یا کٹ کے زمین پہ گر جاؤں گا, تو تمہارے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ اس لیے رابعہ کہتی ہے حسن تم نے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے, میں تم سے نکاح نہیں کروں گی, میں تم سے شادی نہیں کروں گی. اس لیے کہ میرے پاس میں وقت بہت کم ہے. میں رہتی دنیا تک اپنے اللہ کی اتنی عبادت کرنا چاہتی ہوں, اتنی ریاضت کرنا چاہتی ہوں, میں اپنے مولا کو اتنا منانا چاہتی ہوں کہ میں دنیا میں رہتی زندگی میں جب تک میری سانسیں ہیں میں رہتی زندگی میں اس بات کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ رابعہ جہنمی نہیں بلکہ جنتی ہے. میں اپنے مولا کی اتنی عبادت کر کے دنیا سے جانا چاہتی ہوں کہ زندگی میں مجھے اس بات کی سند مل جائے جب میدان محشر میں میرے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو میری نیکیوں کا جو پلڑا ہوگا وہ ہلکا نہیں ہوگا بلکہ بھاری ہوگا. میں زندگی دنیا کے اندر جب تک میری سانسیں ہیں میں اس بات کی سند, اس بات کا رزلٹ لینا چاہتی ہوں. جب میرے ہاتھ میں نامہ اعمال کا رجسٹر دیا جائے گا تو بائیں ہاتھ میں نہیں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. میں دنیا کے اندر اس بات کو سننا چاہتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں کہ رابعہ جب پل صراط سے گزرے گی تو کٹ کے نہیں گرے گی بلکہ گزر جائے گی. جب اتنا کہا تھا حضرت رابعہ نے تو حسن کہنے لگے تھے رابعہ سن لو میں تم سے نکاح نہیں کروں گا لیکن میں ایک بات آخر میں کہنا چاہتا ہوں. رابعہ بصرہ کے اندر تو عورتیں قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی, بصرہ کے اندر بیٹیاں قیامت تک پیدا ہوتی رہے گی, بچیاں قیامت تک بصرہ کے اندر جنم لیتی رہے گی. لیکن رابعہ سن لو تمہارے جیسی بیٹی نہ آج تک پیدا ہوئی ہے نہ صبح قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے. یہ رابعہ کی شان تھی اور یہ حضرت اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ بے شک. میں اپنی بیٹیوں تک یہ بات پہنچانا چاہوں گا کہ آج پوری دشمنوں کا پورا پروپیگنڈا چل رہا ہے, پورا مشن چل رہا ہے ان کا, ان کی پوری تنظیم کام کر رہی ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے سے انہوں نے نام اپنا عبداللہ رکھ لیا ہے, انہوں نے نام اپنا غلام رضا رکھ لیا ہے, انہوں نے نام اپنا علی رکھ لیا ہے, لیکن وہ اندر سے کچھ اور ہے. ہماری بچیوں کے قریب ہونا چاہتے ہیں موبائل کے ذریعے اور پھر وہ ہماری بچیوں سے اس بات کا لالی پاپ دیتے ہیں کہ ہم تم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں, تم سے فرینڈشپ کرنا چاہتے ہیں, تم سے ہم فرینڈشپ کرنا چاہتے ہیں, تمہیں دوست تمہارے بننا چاہتے ہیں, تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں. وہ تمہارے دوست نہیں ہوتے ہیں میری بیٹیوں, بلکہ وہ تمہارے کلمے کے تمہارے دین کے لٹیرے ہوتے ہیں. وہ تمہارے سینے سے تمہارا کلمہ نکالنا چاہتے ہیں. ان کی پوری تنظیم اس بات پہ لگی ہوئی ہے, کام کر رہی ہے. لیکن یہ
ये तभी होगा, आप हजरात आप तभी समझ पाओगी जब तुमने सज्जदा फातिमा की हिस्ट्री को पढ़ा होगा, सज्जदा ज़ैनब की हिस्ट्री को पढ़ा होगा, सज्जदा सकीना, सज्जदा सुगरा, सज्जदा उम्मे रुबाब, सज्जदा उम्मे ऐमन, सज्जदा उम्मे लैला की हिस्ट्री को पढ़ा होगा। हमारी बच्चियों का हाल क्या है? बच्चियों को जब घर के काम काज करने के बाद में जब वक्त मिलता है तो टीवी के सामने बैठ के सीरियल देखा करती हैं। अगर तुम इस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारोगी तो तुम्हें पता ही कहां चलेगा फातिमा ने अपनी जिंदगी गुजारी कैसी थी। तो मैं इस बात को महसूस कैसे करूंगी कि ज़ैनब के बाप का जब इंतकाल हो गया था, ज़ैनब का भाई भी करबला के मैदान में शहीद हो गया था, करबला के तपते हुए रेगिस्तान में, लेकिन जिसने भाई बन के हमारे इस्लाम की रहनुमाई की थी, बाबा अली बन के जिसने जुल्फ़िकार हैदरी अपने हाथ में लेकर के चलाई थी, वो साथ कोई और नहीं सज्जदा ज़ैनब की जात थी। ये पता तभी चलेगा जब तुम सज्जदा ज़ैनब की हिस्ट्री को पढ़ोगी। ऐ मेरी बेटियों, मेरी शहजादियों, अगर तुम्हें घर का काम काज करके वक्त मिला करे, बच्चों को दूध पिला के जब वक्त मिला करे, अपने शौहर को खाना खिला के, अपने बच्चों के कपड़े धुल करके, अपने घर की सफाई सुथराई करके वक्त मिला करे, तो अगर तुम्हें कुरान पढ़ना आता है तो कुरान की तिलावत करने बैठ जाया करो। अगर तुम्हें उर्दू पढ़ना आता है तो तुम अपने इस्लाम की जो शहजादियां गुजरी हैं उनकी हिस्ट्री को पढ़ा करो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हमारे इस्लाम के अंदर हमारे मुस्तफा के खानदान की बेटियों ने कितनी परेशानियों को बर्दाश्त किया था, तब कहीं जाके इस्लाम हम तक पहुंचा गए। तभी तो किसी ने कहा था, तभी तो किसी ने कलमे के ताल्लुक से कहा था, नबी की खुल्के अजीम सर ने सभी को कलमा पढ़ा के छोड़ा। आग और पत्थर के जो थे पुजारी उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। उमर के गुस्से में चूर इतने चले थे हजरत को कत्ल करने, मगर रिसालत की एक नजर ने उन्हें भी कलमा पढ़ा के छोड़ा। बेशक बेशक। मैंने जो बोला है आपने जो सुना है, तकाज़ाए बशरियत, इंसान होने के नाते कोई भी गलती, खामी, कोताही, लफ्ज़िश, अदबन, एहतरामन वाक़ई हो गई हो अल्लाह के हुज़ूर। आज की सबके वसीले पाक से सब मिलकर तौबा करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से मेरे साथ तौबा करें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।